آپ دیکھ رہے ہیں شہر شہر گاؤں گاؤں اور میں ہوں ویسے اقبال۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں انسولین، بلڈ پریشر، کینسر سمیت دیگر ادویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ مریضوں کو ادویات کے حصول کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ امراض قلب، شوگر، بلڈ پریشر اور دیگر ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مزید جانیں گے بیورو چیف شاہد علی سے۔ شاہد، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں فیصل آباد میں انسولین، بلڈ پریشر، کینسر اور دیگر جو ہے زندگی بچانے والی ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، اور اس وقت اگر آپ دیکھیں گے سرکاری ہسپتالوں میں تو ان کا بالکل فراہمی نہ ہونے جا رہی ہے۔ ساتھ اگر کوئی جو صارف جو ہے پرائیویٹ مارکیٹ میں جاتا ہے، میڈیسن مارکیٹ میں، تو وہاں پر اس کی قیمتیں جو ہے بلیک میں فروخت کی جا رہی ہے۔ جو ایکچوئل قیمت ہے، پہلے بھی قیمتوں میں اضافہ ہوا، لیکن مافیا نے اس قسم کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو ادویات نہیں ملتی، پھر لوگ مجبوراً مریض جو ہے ان کی واقعی جو ہے مجبوراً وہ بلیک مارکیٹ سے ادویات خرید رہے ہیں، اور اس حوالے سے فیصل آباد انتظامیہ محکمہ صحت کا کنٹرول جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر محکمہ صحت کے افسران سے اس حوالے سے بات کریں، جو انسپیکٹرز ہیں، تو وہ بڑا لال سے کام لیتے، ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، جن قانون کے جو دائرہ ہمارا ہے اس دائرے میں رہ کر ہم ان کو پابند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام صارف جو عام مریض ہے، اس کے جو عزیز و کارب ہیں جو اس کا علاج کروا رہے ہیں، وہ علاج کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے رقم تو اس مہنگائی کے دور میں۔ بہت شکریہ شاہد علی آپ کا۔ ادھر پشاور میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ گیس لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ شہری مہنگی LPG اور لکڑیاں خرید کر استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانیں گے جمیل خان سے۔ جی بالکل، یقیناً پشاور کے مختلف علاقوں میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ عوام سے بھاری بلز بھی وصول کیے جاتے ہیں ہر مہینے، اور اس میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے بلوں میں، لیکن اس کے باوجود اندرون شہر کے علاقے خصوصی طور پر نوتیا، گلبرگ، فردوس، تشنگری، رامداس، دیگر علاقے جو اندرونی شہر کے ہیں، وہاں پہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے عوام کو۔ یا تو لکڑیوں کا استعمال کرتے ہیں یا LPG کا حکمرانوں سے جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ بھی پورے نہیں کیے جاتے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے نوتیا کے، ان سے بھی جانتے ہیں کہ کتنی مشکلات کا سامنا ہے۔ گیس تو 24 گھنٹے بند رہتی ہے اور پھر بھی بل آ رہے ہیں، اتنے بل آ رہے ہیں کہ لوگ آٹا نہیں گھر لا رہے اور بلوں کے لیے رو رہے ہیں۔ عوام کو تو تباہ کر دیے۔ یہاں پہ شہری کہتے ہیں کہ گیس ہے ہی نہیں پشاور کے اندرونی شہر میں، لوگ یا لکڑیوں کا استعمال کرتے ہیں یا LPG کا، جس کی قیمتیں بہت زیادہ ہے۔ عوام پریشان ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ فوری طور پر نوٹس لے لوڈ شیڈنگ پہ، تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر کوئٹہ میں گیس کی بندش اور پریشر میں کمی کے باعث شہری سراپا احتجاج ہیں۔ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ شہری پریشان ہیں۔ مزید جانیں گے شاہ نظر بادینی سے۔ جی میں اس وقت موجود ہوں مغربی بائی پاس پر، جہاں آس پاس کے مکینوں نے روڈ بلاک کر رکھی ہے۔ روڈ بلاک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ 4 سالوں سے ان ایریاز میں، ان علاقوں میں گیس کی پریشر جو ہے وہ کم ہے، بلکہ بعض جگہ گیس بالکل ہے ہی نہیں۔ دوسری جانب مکینوں کا کہنا ہے کہ 3 معصوم بچے جو ہے وہ سردی کے باعث یہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے جب تک گیس پریشر بحال نہیں ہوگا، ہماری جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ بحال نہیں ہوگا، کلی رسانی اور یہ زہری ٹون یا گنڈی، مختلف آس پاس کے علاقے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک گیس پریشر بحال نہیں ہوگا روڈ بلاک رہے گا۔ ادھر پنجاب حکومت کی تعلیم سے متعلق دعوے ہوا ہو گئے۔ احمد پور شرقیہ میں سرکاری اسکول کی عمارت ایک بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی، جبکہ کلاس رومز میں توڑی اور کپاس کا ڈھیر ہے۔ بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہے۔ مزید جانیں گے گلشیر سے۔ جی میں اس وقت احمد پور شرقیہ کا نوائی علاقہ موزہ محمود آباد میں موجود ہوں۔ یہاں پر سکول کو جو کہ محکمہ تعلیم کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہے جو کہ سراپا احتجاج ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ جی بہوں عرصے تو سکول بند ہے، ساڑھے بال بہوں پرے پرے تھی پڑھن وینن تے لہذا جرنا ان 4 دیواری کہنی ٹوٹ پھوٹ دا شکار ہے، بہوں دیر تو بند ہے۔ لہذا وزیر اعظم کو درخواست ہے ان نوٹس کی دا ونجے اپیل میں۔ جی ان کا کہنا ہے کہ اس سکول کو محکمہ تعلیم نے بند کر دیا ہے اور ہمارے بچے دور دراز جا کر پڑھنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے اپیل کیا کہ اس سکول کو دوبارہ بحال کیا جائے اور اس کا فی الفور نوٹس لیا جائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ میونسپل کمیٹی کی غفلت اور نااہلی کے باعث ٹیرہ مراد چمالی کا اخلوطہ فیملی پارک ویرانے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ پارک میں سہولیات کا فقدان ہے اور ہر جانب گندگی کے انبار لگے ہیں۔
डेरा मुराद जमाली का इकलौता फैमिली पार्क वीराने का मंजर पेश कर रहा है। पार्क में लगाए झूले टूट फूट का शिकार हैं। इंतजामिया की गफलत के बायस पार्क में बैठने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं, जबकि शहरी तफरीह की सहूलियात से महरूम हैं। पार्क बिल्कुल ही तबाह हो चुका है, ये पार्क को संभाल नहीं सक रहे और पार्क की हालत देख रहे हैं आप, कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। या कोई पार्क में अंदर ना कोई लाइटिंग की सहूलत है, ना ही पार्क खुलता है, झूले भी टूट फूट के शिकार हैं और ये आप देख रहे हो जो लाइटिंग लगी हुई थी उनकी तारें भी ऐसे बिगड़ी हुई पड़ी हुई हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद से पार्क में तफरीही सहूलियात बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली, डेरा मुराद अली जमाली। राजनपुर में कच्चे के इलाके में डाकू के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बायस रुझान तहसील भर में इंसदाद पोलियो वैक्सीनेशन का अमल रोक दिया गया है। तमाम टीमों को सिक्योरिटी रिस्क की बिना पर फील्ड से वापस बुला लिया गया। 1,25,000 बच्चे मुतासर होने का खदशा है। मज़ीद जानेंगे अता मोहम्मद से। जी बिल्कुल, जो है इन दिनों राजनपुर में इंसदाद पोलियो कतरे पिलाने का जो मुहिम है वो राजनपुर ज़िला भर में जो है वो जारी है, लेकिन रुझान में कच्चा ऑपरेशन की वजह से जो है पोलियो कतरे पिलाने का जो सिलसिला है वो रोक दिया गया है, जबकि अचानक जो है तमाम टीमों को वापस भी बुला लिया गया है। इससे कितने बच्चे जो है वो मुतासर होंगे, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डिप्टी जो है हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद फयाज मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, इससे कितने बच्चे जो है खासकर मुतासर होंगे कतरे ना पीने की वजह से? इसमें टारगेट तकरीबन 1,25,000 के करीब जो बच्चे हैं 5 साल की उम्र से नीचे हैं, वो जो है ना कतरे का जो हमारा टारगेट था तहसील में उन्होंने पीने थे। तो इंशाल्लाह जब दोबारा ये इशूज़ या कच्चा ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा, हम दोबारा इंशाल्लाह तहसील रुझान में भी अपनी जो पोलियो की कैंपेन है वो हम लॉन्च कर देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, जो है इनकी यहाँ से ये बताया जा रहा है कि कच्चा ऑपरेशन की वजह से जो है हमने पोलियो मुहिम को जो है आर्जी तौर पर रोक दिया है। इससे जो है 1,25,000 के करीब जो बच्चे हैं वो मुतासर होने का खदशा जो है वो भी ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानब इनकी जानब से ये बताया जा रहा है जैसे ही जो है यहाँ हालात साजगार होंगे दोबारा से जो पोलियो कैंपेन है उसे जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका मेहरान शाह। शुमाली वज़ीरिस्तान मीरड़ी बाजार में दुकानदार समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद ने कान से 3 अफराद को उठाकर खेतों में कत्ल कर दिया। तीनों अफराद की लाशें खेतों से बरामद हुई हैं। मानसेरा पुलिस की कार्रवाई, चोरों का 8 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से 11 अदद मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फ़ोन समेत तिलाई जेवरात बरामद हुए। गिरफ्तार मुलजिमान पुलिस को मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब थे। पुलिस ने चोरी शुदा मोटरसाइकिल की चाबियां मालिकान के हवाले कर दी हैं। सरगोदा में अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम विंटर गाला का इनेकाद हुआ। विंटर गाला में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मलबूसात और दीगर अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। विंटर गाला में खवातीन समेत बच्चों ने शिरकत की। इमरान गुराया की रिपोर्ट। सरगोदा में अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे इत्माम विंटर गाला का एहतमाम हुआ। विंटर गाला में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मलबूसात और दीगर अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। तलबा की जानिब से विंटर गाला में मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए गए। विंटर गाला में खवातीन समेत बच्चों ने शिरकत की। सब मिलकर तामीर करो एक रोशन पाकिस्तान की। मुंतज़मीन का कहना है कि विंटर गाला में शहरी बड़ी तादाद में फंड्स दे रहे हैं। अभी जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं ये खुद स्पॉन्सर किए गए हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा। इसकी जितनी आमदनी है वो सारी की सारी तामीर मिल्लत प्रोग्राम में जाएगी। बच्चियों का कहना है कि विंटर गाला में मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल सजाए गए हैं। हमने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल है, मेहंदी, खिलौने, खाना, बहुत मजा आ रहा है। मुल्क भर में अल खिदमत फाउंडेशन सैलाब मुतासरीन की बहाली के इक़दामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। कैमरामैन राजा शाहिद के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यूज़ सरगोदा। कराची की मली शमसी सोसाइटी के घर से माँ और 3 बच्चियों की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक फवाद नामी शख्स ने मुमकिना तौर पर बीवी और बच्चों को कत्ल किया। मुलजिम खुद भी जख्मी है, जिसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लाशों की शनाख्त 10 साला सिमरा, 12 साला फातिमा और 16 साला नेहा के नामों से हुई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लाशें मिलने का नोटिस एडिशनल IG से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे नसीम आदिल से। नसीम, क्या पता चल सका अब तक तहकीकात में? देखें वैसे इस वक्त मैं उनके जहाँ ये वाक़या हुआ है उनके घर के बाहर मौजूद हूँ। ये अफसोसनाक वाक़े में 3 बच्चियाँ उनकी माँ को कत्ल किया गया है और इस वाक़े में जो शख्स है फवाद वो इस वाक़े में मुल्ज़िम है जो खुद ज़ख्मी है। हमारी बात हुई SSP करंगी साजिद अहमद से। उनका कहना है कि इस वाक़े में जो मुल्ज़िम है फवाद, उसने पहले अपनी बीवी और 3 मासूम बच्चियों को ज़िबा किया है, उसके बाद उसने खुदकुशी की कोशिश की है। ये ग्राउंड +1 एक पीछे मेरे रकम में ये घर है, उसके
अब जो पहली मंजिल बलाई मंजिल पे ये वाक़या हुआ है, अंदर में गया था, 2 कमरों के अंदर अलग अलग बेड पे खून पड़ा हुआ था और जो किचन के पास भी खून पड़ा हुआ था। एक बच्ची का यूनिफॉर्म भी अंदर मौजूद था और जब पुलिस ने यहाँ पे तहकीकात की, उनका कहना है कि घर के अंदर जो है यहाँ पे कोई दाखिल नहीं हुआ, लेकिन उनकी जो फवाद मुलजिम है उसकी वालदा और बहू वो घर में मौजूद थे। जो मुलजिम का दूसरा भाई है वो दूसरे घर में मौजूद नहीं था, वो किसी काम से बाहर गया हुआ था। तो ये इससे जो 4 अफराद कत्ल हुए हैं, इसकी जो गुत्थी है वो अपना तकरीबन जो है वो अपना जो इस वाक़े की तस्दीक की है SSP कोरंगी ने कि इसमें मुलजिम जो फवाद है उसने अपनी बीवी और 3 बच्चों को कत्ल किया है। उसके बाद से मुलजिम ने खुदकुशी की कोशिश की। इस वाक़े में मुलजिम को जिना पर मुंतकिल किया गया है। पुलिस इस वाक़े की मज़ीद तहकीकात कर रही है कि इनमें आपस में कोई झगड़ा हुआ था और इसकी वजूहात क्या है। जी अच्छा, ये बताइएगा नसीम आदिल कि क्या आला कत्ल बरामद हुआ है और क्या फोरेंसिक्स किए गए हैं? जी बिल्कुल, हमारी बात हुई है SSP कोरंगी से और पुलिस से। उनका कहना है कि इस वाक़े में जो आला कत्ल है, जो छुरी है, वो पुलिस ने बरामद कर ली है और इस वक्त पुलिस की तहवील में इस वक्त जो घर के अंदर जो फॉरेंसिक की टीम है और फिंगरप्रिंट्स की जो माहिरीन है वो अंदर मौजूद हैं, जो यहाँ पे फिंगरप्रिंट हासिल कर रहे हैं। जो इब्तदाई तौर पर जब हमने उनकी वालदा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात नहीं की है। पुलिस को उन्होंने बयान दिया कि उनको कोई घर से किसी के शोर शराबे की आवाज़ भी नहीं आई है और घर के अंदर कोई दाखिल भी हुआ है। तो ये कभी इम्कान यह है कि, और जो पुलिस ने इसकी तस्दीक भी की है कि इस वाक़े में घर का जो फ़र्द है फवाद, उसने किसी झगड़े के बाद अपनी बीवी और 3 बच्चियों को कत्ल किया है। उसके बाद उसने खुद भी जो अपने गले में छुरी फेरी है, लेकिन वो अभी ज़ख्मी है और जिनाब ताल में मौजूद है। पुलिस का ये कहना है कि ज़ख्मी की भी हालत जो है तशवीशनाक है, वो भी बात करने के काबिल नहीं है। उसके स्टेबल होने के बाद ही उसका बयान हम लेंगे। उसके बाद जो हकीकत है मज़ीद सामने आ सकेगी। इस वक्त पुलिस की और रेंजर्स के हुक्म यहाँ पे मौजूद हैं और घर के अंदर मुआयना किया जा रहा है कि इसमें घर के अंदर कोई दाखिल तो नहीं हुआ था या इसके कोई अपना वाक़े में कोई और मुल्ज़िम मुलविस तो नहीं है, इसकी भी तहकीकात की जा रही है। अच्छा नसीम, ये बताइएगा कि जो मुबैना मुलजिम है फवाद, इसके मुतालिक अहले इलाका का क्या कहना है कि इसके अपने घर वालों के साथ ताल्लुकात कैसे थे और क्या किसी किस्म की इससे पहले भी लड़ाई झगड़े के वाक़यात पेश आते थे? देखिए, उनकी वालदा से जो SSP कोरंगी ने बात की है, उन्होंने ये बताया है मीडिया को कि उनकी मां का ये कहना है कि कोई ख़ास घर में झगड़े नहीं होते थे कि इतनी बड़ी नौबत आ जाए कि उसने अपने बच्चों और बीवी को कत्ल किया है। घर में मामूली नौयत के झगड़े तो होते रहते थे। आज क्या हुआ है इसकी हकीकत वो मुलजिम जो ज़ख्मी है वो खुद जब होश में आने के बाद बताएगा। अलबत्ता उनकी माँ ने कहा है कि वो आज जब घर में दाखिल हुआ है और वो सीधा ऊपर गया, उसने अपने कमरे के दरवाज़ा लॉक कर ली। तो उसके बाद से वो 2 घंटे से अपनी माँ से और नीचे जो भाभी से राब्ते में नहीं था। उसका जो भाई था वो दूसरा भाई वो घर से बाहर था। अचानक जो है वो जब उसकी माँ जब घर के ऊपर गई है, नॉक किया तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो अंदर से किसी की आवाज़ नहीं है। उसके बाद अहले इलाका जमा हुए हैं, लोगों ने दरवाजे को तोड़ा तो अंदर जो बच्चियाँ हैं और जो उनकी माँ है उनकी लाशें पड़ी हुई थी और ख़ुद जो मुलजिम जो फवाद है वो ज़ख्मी हालत में मौजूद था। उसके बाद यहाँ पे रेस्क्यू टीमें पहुँची हैं, इलाका पुलिस पहुँची है। पुलिस ने हालात और ज़ख्मियों को जिनाब पर मुंतकिल किया। उसके बाद जो यहाँ पे तमाम अफसर पहुँचे और वाक़े की जांच की जा रही है। जी अच्छा नसीम आदिल, ये भी बताइएगा कि जो मुलजिम फवाद है ये क्या करता है और इसके बारे में कुछ मज़ीद मालूमात मिल सकी हैं? क्या इसे किसी किस्म के नफ्सियाती मसाइल का सामना था? कुछ इस हवाले से अहले इलाका ने डिटेल्स शेयर की हैं? देखिए, हमारी बात हुई है पुलिस से। उनका कहना है कि मुलजिम में कोई प्राइवेट जॉब करता था, उसको कोई अपना बिजनेस था। 120 गज का ये मकान है, ग्राउंड +1। नीचे छोटा भाई रहता था और ऊपर जो फवाद मुलजिम अपने 20 बच्चों के साथ मुकीम था। नीचे उनकी वालदा और जो दूसरा भाई उसकी बीवी रहते थे। उनमें से किसी के साथ कोई सा वाक़या नहीं हुआ। अलबत्ता मुलजिम ने सिर्फ कोई ज़ाती रंजिश की बिना पे कोई ऐसी बात हुई जिस पर उसने पहले अपने बच्चों को और फिर बीवी को ज़िबा किया है। उसके बाद उसने खुदकुशी की कोशिश की है। जिस्म के किसी भी हिस्से पे कोई चोट का निशान नहीं, सिवाय गर्दन की जो शहर गए तमाम फर्क की वो कटी हुई है, जिससे उनकी मौत वाक़ई हुई है। अभी जिनाब ताल में लाशों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जो ज़ख्मी है उसके बयान के बाद मज़ीद सूरत-ए-हाल वाज़ेह होगी कि उसने अपने बीवी बच्चों को क्यों कत्ल किया है। जी, ये जो आला कत्ल है छुरी, ये रूटीन की जो किचन की छुरी होती है वो है या कोई ख़ुसूसी तौर पर इसके लिए कोई खंजर चाकू वगैरह ख़रीदा गया या ये वक्ती इश्तियाल का नतीजा था ये वाक़या नसीम?
देखें, जो पुलिस से हमारी बात हुई, जो बकरा जो ज़िबा करने की जो छुरी होती है, जो आम घर में मौजूद होती है, उस छुरी का मुलजिम ने इस्तेमाल किया है। और ये छुरी घर में इनके घर में पहले से मौजूद थी। इसकी वालिदा ने भी तस्दीक की, बाहर से छुरी पहले से लेके नहीं आया था, घर में छुरी पहले से मौजूद थी। और इसने एक इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, पुलिस ज़राए, के इसने पहले अपने बीवी बच्चों को कोई जहर आलूदा कोई ऐसी नशे वाली चीज़ खिलाई है जिसमें जहर था, जिसके बाद उन बच्चों पर गुनूदगी हुई है, वो बेहोश हुए हैं। उसके बाद इसने बासानी अपनी बीवी और तीनों बच्चों को ज़िबा किया है, जिसकी वजह से किसी मदामत की, किसी शोर की आवाज़ नहीं आई है। नीचे उनकी माँ मौजूद थी, उनकी अपना बहू मौजूद थी, लेकिन उनको भी आवाज़ नहीं आई है। तो ये कभी इम्कान है कि मुलजिम ने पहले बीवी बच्चों को कोई नशा व चीज़ दी है, उसके बाद उनको कत्ल किया हो। लेकिन नसीम, इससे पहले तो ये बताया जा रहा था कि चीखों पुकार की आवाज़ें आई, जिसके बाद लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए। जी बिल्कुल, अहले इलाका ने बताया जब इसकी माँ, बच्चे की जो मुलजिम की माँ जब घर के ऊपर गई है तो उसने ऊपर लाशें देखी, और जब खून देखा तो वो जब चिल्लाई है, नीचे उसकी बहू चिल्लाई। उसके बाद यहाँ लोग जमा हुए हैं, और जब लोग जमा तो ऊपर गए तो अंदर लाशें मौजूद थी। ज़ख्मी जो खुद मुलजिम है फवाद, वो मौजूद था। उसके बाद फिर पुलिस को इतला दी गई, रेस्क्यू टीमें पहुँची, फिर यहाँ से तमाम अफराद को रेस्क्यू किया गया। पुलिस हुकाम अभी भी मौके पर मौजूद हैं और फरंदी की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। नसीम आदिल, आप हमारे साथ रहिएगा। कराची की मलीर शमसी सोसाइटी के घर से मां और 3 बच्चियों की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक फवाद नामी शख्स ने मुमकिन तौर पर बीवी और बच्चों को कत्ल किया। मुलजिम खुद भी जख्मी है, जिसे शदीद जख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया है। लाशों की शनाख्त 10 साला सिमरा, 12 साला फातमा और 16 साला नेहा के नामों से हुई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लाशें मिलने का वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इतलात के मुताबिक ये 120 गज का मकान था, जो ग्राउंड +1 था। नीचे वाली मंजिल पर मुलजिम का भाई और वालदा रहते थे अपनी फैमिली के साथ, जबकि ये मुलजिम जो था ये फर्स्ट फ्लोर पर रहता था। और इतलात यही है कि लड़ाई झगड़े के बाद मुलजिम ने कोई नशा आवर दवाई पिलाई माँ और बेटियों को, और उसके बाद इनको कत्ल कर दिया। अमूमी तौर पर घरों में जो कुर्बानी वाली छुरी होती है, उस छुरी का इस्तेमाल किया, और पुलिस ने इस वाक़े के आला कत्ल को भी बरामद कर लिया है, और मज़ीद तहकीकात का सिलसिला अभी जारी है। ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर यह इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या पेश आया कि एक हंसता बसता घराना उजड़ गया। नसीम आदिल हमारे साथ मौजूद है। नसीम, ये बताइएगा कि जो ज़ख्मी मुलजिम फवाद है, उसकी हालत कैसी है? SSP कोरंगी हैं साजिद सदोई, उनका ये कहना है कि जो ज़ख्मी मुलजिम है फवाद, उसको जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है, क्योंकि उसकी भी शहर के करीब काफ़ी ज़ख्म आए, वो भी तशवीशनाक उसकी हालत है, वो अभी बोलने के काबिल नहीं है, उसको अभी ट्रीटमेंट दी जा रही है। लेकिन जो कभी इम्कान है वो यही पुलिस ने ज़ाहिर किया है कि इस वाक़े में मुलजिम फवाद ने अपनी अहलिया और 3 जो मासूम बच्ची हैं जिनकी उम्र 10 से 16 साल के दरमियान, उनको तेज़ आले से ज़िबा किया है। ये जो बात थी चीखो पुकार की, उसमें जो इनकी वालदा हैं और बहू, जो बेटा ऊपर से नीचे नहीं आए तो वो ऊपर गए हैं, तो उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर खून फैला हुआ है और तमाम अफराद खून में लथपथ पड़े हुए हैं। तो वो जो उनकी वालदा हैं वो चिल्लाई हैं, बहुत चिल्लाई। उसके बाद जो अहले महल्ला हैं वो घर के ऊपर गए हैं, तो उन्होंने फिर जाके वाक़े देखने के बाद रेस्क्यू टीमों और पुलिस को इत्तला दी। उसके बाद यहाँ पुलिस पहुँची है। पुलिस का कहना है कि अभी हम तहकीकात कर रहे हैं कि मुलजिम फवाद की अपनी अहलिया से किस किस्म की कोई रंजिश थी, लेकिन ये बात अब तक सामने नहीं आई। उसकी माँ से भी पुलिस ने बयान लिया है। माँ ने बताया कि कोई ऐसा कोई खास झगड़ा नहीं था। अक्सर ये है कि घर में कभी कभी झगड़े होते थे, लेकिन कोई ऐसा खास झगड़ा नहीं था जिसकी वजह से इतना बड़ा वाक़या रुनमा हो। इस हवाले से पुलिस तहकीकात कर रही है कि मुलजिम का दिमागी तवाज़ुन सही था या नहीं था, वो एक प्राइवेट जॉब करता था, उसके माली हालात क्या थे, इस हवाले से पुलिस तहकीकात कर रही है। अलबत्ता पुलिस जो मुलजिम है वो जिना अस्पताल में एडमिट है, वो पुलिस उसके पास मौजूद है, वो पुलिस की तहवील में है। तमाम जो लाशें हैं खातून की और 3 बच्चियों की, वो जिना अस्पताल में मुंतकिल हैं, मौजूद हैं, जिनका लाशों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और लाशों के किसी भी जो हिस्से पे कोई जख्म नहीं, सिवाय उनकी जो शहर है, जो गला है, उसको ज़िबा किया गया तेज़दार आले से। पुलिस ने वो जो तेज़दार आले की जो आले कत्ल है, जो छुरी है बकरे ज़िबा करने की, वो भी अपने तहवील में ले ली है, और तमाम जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी अच्छा नसीम आदिल, ये भी बताइएगा कि मुलजिम फवाद की वालदा से तो पुलिस ने बात की, क्या उसके भाई और भाभी से भी बात की है पुलिस ने?
सिर्फ पुलिस ने उनकी वालदा का बयान लिया है। SSP करंगी साजिद सददोई ने जो उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने उनकी मां से पूछा है कि आपके बेटे का और बहू का कोई आपस में झगड़ा था, तो उनका ये कहना था कि कोई ऐसा हाथ झगड़ा नहीं था। घर में अक्सर इनकी आपस में तलक कलामी होती थी किसी बात पे, लेकिन कोई वाज़ेह बात नहीं बताई गई है कि किस नौयत का झगड़ा था कि इसने आज इस नहज पे आ गया कि उसने अपनी बीवी और बच्चे को कत्ल किया है। इस पुलिस अभी तहकीकात कर रही है कि इसमें इस वाक़े में इनके घर में कोई घरेलू कोई मुश्किल थी, कोई इसकी जॉब का मसला था। अलबत्ता ये कोई प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन कोई इनका बिजनेस नहीं था। ग्राउंड +1 ये इमारत है, फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ ये वाक़या हुआ है, अपना फवाद उसकी फैमिली थी, नीचे उसका भाई था और उसकी वालदा और बहू मौजूद थे। तो अभी तक पुलिस हुकाम यहाँ पे तहकीकात कर रहे हैं और मज़ीद जो मुलज़िम को होश आएगा, जो उसका बयान लिया जाएगा, तो उसके बाद तमाम चीज़ें वाज़ेह होंगी। जी अच्छा नसीम आदिल, ये बताइएगा कि मुलज़िम फवाद के हवाले से क्या मज़ीद मालूमात भी इकट्ठी की जा रही हैं, और पुलिस का क्या कहना है कि पुलिस को तवक्को है कि मुलज़िम स्टेबल हो जाएगा ताकि उसका बयान रिकॉर्ड करवाया जा सके, और क्या मुलज़िम ने ख़ुद को ही ज़ख्मी कर लिया था, ख़ुद को मारने की गर्ज से? देखें, पुलिस जो मुलज़िम फवाद के जो करीबी दोस्त हैं और उसके भाई हैं, उसके भी बयानात हासिल करने की कोशिश कर रही है। और मुलज़िम का जो मोबाइल फ़ोन है, उसकी अहलिया का मोबाइल फ़ोन है, वो भी पुलिस ने अपनी तहवीर में लिया है कि उसमें जो कोई ऐसी चीज़ हो जो पुलिस को मिल सके कि ये वाक़या क्यों रूनुमा हुआ है। क्योंकि पुलिस ने ये बात की तो तस्दीक की है कि घर के अंदर कोई दाखिल नहीं हुआ है, क्योंकि नीचे उनकी वालदा और बहू मौजूद थे। उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि घर का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। सिर्फ फवाद जब दोपहर को घर में आया है तो वो सीधा ऊपर गया है और ऊपर जाके उसने मुमकिन तौर पे अपने 20 बच्चों को पहले कोई जहर आलूद को चीज़ दी है जिससे वो बेहोश हुए हैं। उसके बाद उसने तेज़ आले से बच्चों और उनकी जो अपनी बीवी को कत्ल किया है। अभी तक ये शवाहिद नहीं मिले हैं, क्योंकि अगर ये बच्चे अपना बेहोश ना होते तो वो बच्चे अपना उनकी चीखो पुकार होती, जिसके बाद उनकी माँ ऊपर जाती तो शायद कोई इस वाक़े में कोई बचत हो जाती। लेकिन जब आवाज़ नहीं तो इससे ये इम्कान ज़ाहिर किया कि मुलज़िम ने कोई नशावर चीज़ दी है। पुलिस को बेड से जहाँ ये लाशें मिली, एक कमरे के बेड से एक मास्क भी मिला है, जिसमें शुबा ये है कि वो उस मास्क के ज़रिए उसने अपने बच्चों को पहले बेहोश किया हो, बीवी को बेहोश किया हो, उसके बाद उसने ये अपना कत्ल की वारदात की हो। जी अच्छा नसीम आदिल, ये भी बताइएगा कि मुलज़िम के हवाले से मज़ीद मालूमात इकट्ठी करने का सिलसिला तो जारी है। इस वक्त इलाके में क्या खौफ की फ़ज़ा की जो सूरत हाल है वो क्या है, और जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी नमाज जनाजा का क्या इंतज़ाम किया गया है, कब तक अदा की जाएगी? देखें, हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी, अहले मोहल्ला की, और वो यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं था कि ये जो मुलज़िम है फवाद, उसकी फैमिली और इनके घर में क्या मामला थे। क्योंकि अक्सर ये घर के अंदर जो मामले होते थे ये बाहर डिस्कस नहीं करते थे। SSP करंगी साजिद ने भी हमें ये बताया, साजिद सददोई ने, कि इस वाक़े में पुलिस अभी तहकीकात कर रही है। अभी तक ये बात तो कन्फर्म है कि मुलज़िम फवाद ने ही इस वाक़े में अपनी बीवी और बच्चों को कत्ल किया है। और उनके जो मोबाइल फ़ोन है उनका भी फॉरेंसिक कराया जाएगा कि उनमें जो मोबाइल नंबर हैं उसकी अहलिया के और मुलज़िम फवाद के, उसमें से कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, क्लू मिल जाए कि उनमें आपस में कोई इनका झगड़ा चल रहा हो, तो उसकी भी तहकीकात की जाएगी। बहुत शुक्रिया नसीम आदिल आपका। और अब न्यूज़ अपडेट्स। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ ज़रदारी की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सूबाई असम्बलियों की तहलील के ऐलान पर मुशावरत भी हुई। इस हवाले से तफसीलात भी जानेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।